Good morning, student. This video for class 12 students. Students, I observed that first of all, I want to just clarify this thing that from the last couple of week, I'm not able to take your video class, this online classes because of my evaluation work. Now it is over. Now I'm going to just continue this part again. So what I wanted to convey you that you people are not showing your interest over here. I don't understand why you're not showing your work, what you are doing. Okay, you should communicate with your teacher. So student, I want to just start once more. See, till now, today is 5th June, we have covered, see how many chapters. Chapter number 7, we started from chapter number 7, that is continuity and differentiability. In this chapter, we have learned that how to prove any function continuous. Secondly, differentiability, how to prove the function differentiable. That chapter, it was a very small chapter. After that, we started differentiation. In differentiation, we have learned different types of differentiation types. All the type we have covered. That is indeterminate form of limits, L-Hospital rule. We have learned in this chapter. Chapter number 10, mean value theorem, Rolle's mean value theorem and Lagrange's mean value theorem we have covered in this particular chapter number 10. In application of derivatives, so many topics they have given. For example, tangent and normal to the curve, approximation, rate of change of quantity. Okay, so many topics we have covered in this particular topic. This is application of derivative. Chapter number 12, maxima and minima. In this chapter, this is a 6 marks question in your board examination, and and in that one question they are providing you, and in choice also they are giving maxima minima question. So this is very important part, and here we are going to discuss how to prove the function is maximum. Chapter number 13. Now we already started this integration also, and it is in the last step, that is 15th chapter, indefinite integral. So all the types of integrals one by one we have discussed over here. So see how many chapters we have covered: 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 9 chapters we have covered. So student, first we want to recall these basically these 9 chapters. If I will proceed, I can finish the complete book, but you have to finish your book according to, first you have to clarify your doubts, then you have to move further. So you should communicate with your subject teacher and show your work regularly. So that's why I'm just again and again I am just requesting you, you should show your work, you should communicate with your teacher. Okay, तो नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो भी काम आपने किया हुआ है चैप्टर नंबर 7 से लेकर के 15 तक, ये मुझे दिखाना है. ठीक है, ये काम आपने सबसे पहले काम करना है, ये काम करना है, और इसमें जो भी डाउट्स हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं. देन वी विल मूव फर्दर. ओके, क्योंकि एक एक करके अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे, 15 चैप्टर इट इज़ गोइंग ऑन, क्योंकि जहाँ पर मैंने छोड़ा था ये 15 चैप्टर था, जहाँ पर मैंने उस वक्त यहाँ पर जो है ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था, बल्कि इसमें एक टॉपिक अभी बचा हुआ है 15th चैप्टर के अंदर, लेकिन बाकी के सारे टॉपिक हो चुके हैं. तो फ्रॉम योर बुक, यू हैव अ बुक ऑल्सो, यू वाई यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर एक्सरसाइजेस, यू कंप्लीट योर एक्सरसाइज, शो टू मी, देन वी विल मूव फर्दर. ओके, एंड you have any doubt, any queries, you should bring this thing in my notice. Is it clear to you? Okay, now student, and for this what you will do, I think you have already made the registers also, so that register, that photos you can send to me in my personal ID. Okay, in my personal number you can send your this one that clipping of this different the solutions, and I will make the list those who are not completing, and I will forward it to the principal ma'am also. It is very bad, you should do it. Okay, now student, what I am planning today, this chapter number 15 I want to complete. Okay, so one topic it is remaining, that I want to start today. So student, सबसे पहले ये आपने देखना है कि हमने इंटीग्रेशन में क्या क्या कवर कर लिया.
बेसिकली इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इंटीग्रेटेड पूरा ही आपको आना चाहिए, तब जाके आप आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब जैसे बीच में इतना गैप हुआ है, आपने इंटीग्रेशन नहीं किया है, तो मीन्स एवरीथिंग विल बी स्किप्ड फ्रॉम योर माइंड। तो आपने स्टार्टिंग क्या करनी है, आपको पूरा रिकॉल करना है इंटीग्रेशन को। भले ही यहाँ पर हमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है कि चैप्टर 13 ये है, 14 ये है, 15 ये है, लेकिन आपको अपने माइंड के अंदर पूरा एक सीरीज बना के रखनी है कि मैंने क्या कवर कर लिया और क्या मैं आगे करने जा रहा हूँ। देन यू कैन डू द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन किस लेवल पे कहाँ पर कौन सा आ जाएगा ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो देखो, सबसे पहले चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि हमने चैप्टर नंबर 13 में क्या पढ़ा था। चैप्टर नंबर 13 में हमने बेसिक 11 फॉर्मूले पढ़े थे। 11 फॉर्मूले मतलब जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन का क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स क्या है, कोसेक एक्स कॉट एक्स क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या है, ठीक है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है। ये बेसिक फॉर्मूले जो बेसिक तौर पर इंटीग्रेशन है वो हमने चैप्टर नंबर 13 में डिटेल से पूरा पढ़ा हुआ था और इसकी एक्सरसाइजेस भी की थी। तो ये आपको पूरा बाय हार्ट होना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग दिस चैप्टर और दिस चैप्टर, इट डजेंट मैटर आप कोई भी चैप्टर कर रहे हैं, लेकिन आपका होल्ड इन सब चैप्टर्स पर होना चाहिए। फिर चैप्टर नंबर 14 के अंदर आपने क्या सीखा, जब यहाँ 11 फॉर्मूले आपने सीख लिए, तो 14 चैप्टर के अंदर आपने कुछ स्पेशल जिनका इंटीग्रेशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं था। जैसे आपने साइन कॉस का इंटीग्रेशन यहाँ पढ़ा, लेकिन टेन का, कॉट का, कोसेक का और सेक का इंटीग्रेशन यहाँ नहीं पढ़ पाए थे। तो यहाँ पर आप सीखेंगे कि बाय द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, क्योंकि एक मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी हेल्प से हमने ये फॉर्मूले डिराइव किए हुए थे, ठीक है। तो इनका इंटीग्रेशन हम यहाँ पर सीखेंगे। इसके अलावा मेथड सब्स्टिट्यूशन तो है ही, दूसरा फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट को भी हमने इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। जैसे प्रोडक्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक उसी तरह से इंटीग्रेशन के अंदर जो प्रोडक्ट रूल है वो हमने इस टॉपिक के अंदर सीखा था, जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का नाम देते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने इसमें सीखी थी और वो थी स्पेशल फॉर्म्स। और ये स्पेशल फॉर्म ये थी कि ई की पावर एक्स था और एफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। अगर इस तरह का स्पेशल फंक्शन भी हमने इस टॉपिक के, ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर नंबर 14 का। ओके, चैप्टर नंबर 15 जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें सबसे पहले दिन हमने क्या बताया था, जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये फॉर्म का इंटीग्रेशन जो है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें देखो रूट नहीं है, अभी रूट वाला भी आएगा, इसी चैप्टर के अंदर है। विदाउट रूट ये था 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हमने ये सीखा था कि 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने सीखा था 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बाद सीखी थी, वो थी पार्शियल फ्रैक्शन, कि पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कब आया, मतलब हमारे पास सपोज करो डिनोमिनेटर के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म है, जैसे ये फॉर्म है क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म है जिसके फैक्टर्स नहीं निकल सकते, लेकिन अगर सपोज इसके फैक्टर्स निकल रहे हों तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके किस तरह से क्वेश्चन को किया जा सकता है, ये हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर सीखा था। ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हमने इसको क्वेश्चंस को पूरा डिवाइड कर दिया था और बहुत ईजिली हमने इसके क्वेश्चंस कर लिए थे। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्म है। इस फॉर्म में हमारा क्या है कि हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म तो देख रहे हैं, लेकिन इसके फैक्टर्स निकालने पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन फॉर्मूलों का सहारा तो लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। ओके, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। इसके अलावा हमने क्या सीखा था मैं अभी और बताता हूँ आपको। ओके, तो नाउ स्टूडेंट, एक नेक्स्ट फॉर्म हमने ये पढ़ी थी कि ऊपर देखिए लीनियर फॉर्म है, नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म है। आप इससे कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल कई बार क्या होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आप इसको टी लेट करते हैं और ये फॉर्म निकल के आ जाती है। तो ये फॉर्म वो टाइप नहीं है। इस टाइप में क्या होगा, इसके फैक्ट इसको आप अगर टी लेट करते हैं तो ये फॉर्म निकल के कभी नहीं आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हमने डील करना सीखा था कि कैसे हम लोग इस टाइप के सीख करते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल क्या सीखा, चैप्टर नंबर 15 को देखो एक बार रिकॉल कर लो, क्योंकि चैप्टर नंबर 15 ही हम करने जा रहे हैं और फिनिश क्योंकि आखिरी उसमें है, तो मैं चैप्टर नंबर 15 तक कंप्लीट करवाना चाहता हूँ पहले फर्स्ट। तो ये फॉर्मूला हमने सबसे पहले सीखा, सेकंड दिन ये फॉर्मूला था। फिर इस तरह से हमने वीडियो वाइज ये फॉर्मूले हमने किए हुए हैं। अगर आपने गो थ्रू किए हैं वीडियोस तो इन सब चीज़ों, इन सब के हमने प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन के बेस पर हम लोगों ने काम किया था, जिसमें हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स निकाल करके इसके पार्ट्स हमने करे थे, दैट आई एक्सप्लेन्ड यू। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्म है जिसमें हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आया था। तो इस फॉर्म को भी हमने इसी चैप्टर में के अंदर डिस्कस किया हुआ था। ओके, सो इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हम लोगों ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डील करना सीखा था
जिसमें ऊपर पी एक्स अपॉन क्यू है लेकिन नीचे रूट में है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये रूट में है। इसमें हमने दो टाइप सीखे थे, एक तो ये टाइप है, एक टाइप ये है कि ऊपर हमारा लीनियर नहीं है लेकिन नीचे वाली टर्म रूट में है। ठीक है, तो मैं यहीं से स्टार्टिंग करूंगा इस टाइप के क्वेश्चन से, यहाँ से उसको करना। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। और लेट स्टार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक रिलेटेड टू दिस चैप्टर नंबर 15। सो ये आपने रिकॉल करना है इस चैप्टर नंबर 15 के लिए, जो हमने अब आगे करना है। ओके, सो स्टूडेंट व्हाट वी हैव टू डू, क्या करते हैं, कुछ थोड़ा रिकॉल करते हैं जो हमने 15 चैप्टर है। वैसे तो हमने 15B-C तक हम पहुंच गए हैं, लेकिन 15A से मैं थोड़ा रिवाइज करना चाहता हूँ। तो 15A में देखो हमने क्या किया था। सपोज क्वेश्चन ये है और मुझे इसे इवेल्युएट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में लेके आऊँगा जो कि मेरा फॉर्मूला है। मेरा फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि अगर क्वेश्चन के अंदर इस तरह का फॉर्म है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है बेसिकली। ठीक है, तो इसका हमने आंसर लिखना है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, ये डायरेक्टली लिखना है। तो इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैंने इस क्वेश्चन को करना है। तो इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि ये तो डायरेक्टली दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 tan इनवर्स x अपॉन 6 प्लस सी। तो एक लाइन में आपका आंसर यहाँ पर आ गया, क्योंकि बिकॉज यू नो द फॉर्मूला। ठीक, तो इस एक्सरसाइज के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई हुई थी कि ये फॉर्मूला कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ना स्टूडेंट 15B में देखो हमने कैसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। मैं बता रहा था आपको कि पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हमने इस क्वेश्चंस को किया था। तो इस क्वेश्चंस में क्या है, देखो नीचे फैक्टर्स बने हुए हैं, तो इन फैक्टर्स को हम लोगों ने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से दो अलग अलग फैक्टर, पूरी क्वेश्चन को हमें डिवाइड कर देना है दो अलग पार्ट्स में। तो इसके लिए हमने क्या किया, पूरी क्वेश्चन को विदाउट इंटीग्रेशन साइन जो है क्या काम करा है हम लोगों ने, a/x+1 और b/x-3 ये फॉर्म दे दिया। इसके बाद इसका एलसीएम लिया, नीचे का टर्म तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो मेथड मैंने आपको बताए थे। एक मेथड जो इजी वाला वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर किया गया था, एक बार x-3 को 0 पुट किया और दूसरी बार x+1 को 0 पुट किया। तो जब मैंने x-3 को 0 पुट किया तो मेरा आंसर 9/4 आया b, और जब मैंने x+1 को 0 पुट किया तो इससे आंसर आया a = -1/4। तो इस तरह से a की वैल्यू मुझे मिल गई और b की वैल्यू मिल गई। ओके, तो a और b की वैल्यू को मैंने कहाँ रखा, यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन था और इसके दो पार्ट ये हैं। तो इस a और b को यहाँ रख के इसका इंटीग्रेशन अलग निकाला, इसका इंटीग्रेशन अलग निकाला। तो ये काम मैंने देखो यहाँ पे किया हुआ है। तो ईजिली यहाँ पर आ गया 1/4 log of x+1, और दूसरे वाले पार्ट का आंसर है 9/4 log x-3। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हो गए। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, एक काम करते हैं, आज आप इतने तक रखिए और रिकॉल करिए यहाँ तक पूरा चैप्टर नंबर 15 को। तो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।